Hello, students. Today we are starting a new chapter, that is human health and disease. Okay, human health and disease is our topic. So, from the NEET exam point of view, human health and disease, it is very important topic. Around 3 to 4 questions comes from this chapter. Human health and diseases. Okay, so this is the lecture 1 of this chapter. Let us begin this chapter. First we will see introduction part. What is health and all. Basic चीजें जो जो चाहें required हैं. That all we will see. So in introduction part it is given earlier it was believed that health is maintained by humor. Earlier it was believed that the balance of humor maintains health. So immediately question arises, what is mean by humor? Humor क्या है? तो ह्यूमर क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. व्हाट आर ह्यूमर? बॉडी फ्लूइड्स. इट इंक्लूड ब्लड, lymph, bile juice, bile from the liver है ना. So according to ancient medicine and according to Ayurveda system, इंडिया में जो एंशियंट मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स आल्सो, फादर ऑफ मेडिसिन, ये दोनों क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ह्यूमर जो है आपकी हेल्थ मेंटेन करता है. मतलब आपके बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, ओके, और बाइल जूस है, ऑल दीज टूगेदर मेंटेन्स योर हेल्थ according to this Ayurveda system and according to Hippocrates. So Hippocrates कौन है? Hippocrates, father of medicine बोलते हैं. So according to Hippocrates and Indian Ayurveda system So according to Hippocrates and Indian Ayurveda system, person with black bile, according to them, persons with black bile have hot personality, have fever, and this is totally based on thought. It was totally thought. मतलब क्या बताया जा रहा है यहां पर? देखिए आप लोग. सो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं? सुनिए जरा. अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स and according to Indian Ayurveda system, those persons who are having black bile, bile क्या होता है? Bile is a juice secreted from the liver. The person with black bile have hot personality, they have fever, and it was totally based on thought. There was no evidence at all. कोई proof नहीं था. It was totally thought based. According to Hippocrates and Indian Ayurveda system, person with black bile
hot personality, have fever, it was totally thought based. सबसे पहली चीज, लीवर से जो सिक्रीशन है दैट इज कॉल्ड बाइल जूस. लीवर से जो सिक्रीशन है बाइल जूस है. एंड हियर देयर वाज ए थॉट बाय द हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, जो पर्सन के बॉडी में ब्लैक बाइल प्रोड्यूस होता है, दोज पर्सन्स आर यूजुअली हैव फीवर, और उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है. अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है. ओके, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन थॉट, देयर वॉज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर दिस. फिर बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन विलियम हार्वे. बाद में कौन आते हैं, विलियम हार्वे आते हैं. हु इज विलियम हार्वे? विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, एंड विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द persons having black bile also have normal body temperature, and he demonstrated it by using thermometer. जैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर. तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, हमेशा मेंटेन होता है. विलियम हार्वे यहां पे क्या करते हैं जरा सुनिए. विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है. एंड ही, और ये विलियम हार्वे क्या करता है, देखिए विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर even in those persons with black bile using थर्मामीटर यूज करके बताते हैं कि सबका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, that was different. They totally based on their theory, totally based on thought. There was no scientific proof. लेकिन विलियम हार्वे आने के बाद बताते हैं, even those persons who are having black bile, they are also having normal body temperature, and he demonstrated it by using thermometer. So thereby William Harvey disproved good humor hypothesis. So एक टाइम था, ऐसा मानते थे लोग कि जो भी हम काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, है ना, बेस्ड ऑन दैट डिजीजेस ऑकर. अगर आप बहुत बुरा काम करेंगे तो डिसीज हो जाएगी, ऐसा मानते थे पहले लोग. फिर लेटर ऑन इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम और हिपोक्रेट्स बोले नो, द पर्सन्स हु आर हैविंग ब्लैक बाइल दे आर यूजुअली सफर फ्रॉम फीवर. उनको बहुत ज्यादा फीवर होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, दोज आर कॉल्ड हॉट पर्सनालिटी. लेटर ऑन विलियम हार्वे आने के बाद, समझ गए बात, विलियम हार्वे आने के बाद बताया जा रहा है द पर्सन हु आर हैविंग ब्लैक बाइल दे आर आल्सो हैविंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड इट बाय यूजिंग थर्मोमीटर. फाइनली विलियम हार्वे डिस्प्रूव कर देते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. Who was supporting good humor hypothesis? There are two questions. One question is who was supporting good humor hypothesis? Good humor hypothesis supported by Hippocrates and Indian Ayurveda system, old method. But later on who disproved it? Disprove के बारे में अगर पूछेंगे आपको तो विलियम हार्वे बोलेंगे. चलिए, सो टाइम टू टाइम जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट होते गए,
टाइम टू टाइम साइंटिफिक एडवांसमेंट होते गए. सो न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम अफेक्ट आवर हेल्थ. जब भी कोई डिजीज होती है, क्यों होती है भाई डिजीज, जरा सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर न्यूरल सिस्टम प्लस endocrine system affects our immune system, right? And our immune system affect health. Immune system affects our health. समझ नहीं आई बात? मतलब क्या है, आपका इम्यून न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम कर रहा है. योर न्यूरल सिस्टम, व्हाट आर द थॉट्स यू आर हैविंग, व्हाट आर द थॉट्स यू आर हैविंग इन योर माइंड, वेदर गुड थॉट्स और बैड थॉट्स. आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज न्यूरल सिस्टम. प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, योर हार्मोन्स, योर बॉडी हार्मोन्स. तो न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम बोथ अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम. अगर आप अच्छा सोचेंगे, सो इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स, तब आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा. इफ यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स हैं, आप खराब सोचते हैं, देन योर एंडोक्राइन सिस्टम, योर न्यूरल सिस्टम अफेक्ट्स वेरी बैड to your immune system. As a result, immune system becomes weak. Immune system affects our health. समझ में आ गया? So you should have positive thinking, good thinking होना चाहिए, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, because न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं. ओके, सो वी कैन से माइंड एंड मेंटल स्टेट. सो वी कैन से mind and mental state affects our health. ठीक है, माइंड और मेंटल स्टेट हमारे अफेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर. आप कैसे सोचते हैं पॉजिटिवली, कितना पॉजिटिवली सोचते हैं उतना जो है आप हेल्दी रहेंगे. So your mind and mental state also decide health. Okay, this is the very important point. जैसे ही immune system weak हो जाएगा, the number of diseases increases. Okay, एक person को बहुत सारे disease हो रहे हैं, that means his immune system is getting weaker and weaker. If a person is not getting any disease, that means his mental state and his neural system, his endocrine system is working very well. That's why immune system is working very well. So neural system, endocrine system affects immune system, याद रखना है. Next, so health is affected by, so our health is affected by, let us see what are the factors which disturb our health. ठीक है, what are the factors which disturb our health. लिखिए number 1 point, health affected by. Number 1, health is affected by genetic disorders. Health is affected by genetic disorders. What are genetic disorders? The disorders which are inherited from parents to progeny. They are inherited. ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होंगे. दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कैन वी हैव सम एग्जांपल्स? Examples are color blindness, hemophilia. Okay, these are the genetic problems
विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दूसरा है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। व्हाट आर इन्फेक्शंस? फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन, राइनो वायरस इन्फेक्शन causes common cold, common cold। सो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या प्रोटोजोआ अगर आपको अटैक करता है बॉडी को, देन इट कॉजेस इन्फेक्शन। जैसे राइनो वायरस इन्फेक्शन कॉजेस कॉमन कोल्ड, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन कॉजेस मलेरिया, causes malaria. So many examples are there, infections. And then third, health is affected by number 1 genetic disorder, number 2 infection, number 3 lifestyle also affects. Lifestyle, lifestyle means what kind of habits you are having, what kind of water you are drinking, what kind of food you are eating. So that is lifestyle. Contaminated water, food, contaminated water, food also attack health. ये लाइफ स्टाइल है ना, आप कहाँ से वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, आप बाहर का खा ले रहे हैं, है ना, कहीं पे बाहर जाके खा रहे हैं। सो फूड, वाटर कौन सा टाइप का यूज कर रहे हैं, हैबिट्स, योर हैबिट्स आल्सो गेट्स अफेक्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड। आफ्टर दिस, व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज मीन बाय हेल्दी? वी से सम पर्सन्स आर वेरी वेरी हेल्दी। व्हाट इज मीन बाय हेल्थ? हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? So सुनिए, health does not simply means absence of disease. Health does not simply means absence of disease. सिर्फ डिजीज absent है तो आप जो है हेल्थ नहीं बोल सकते, absence of disease। सो हेल्थ क्या होती है? टोटल वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। आप अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हैं, अपने रिलेटिव से कैसे बात करते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो काउंटेड अंडर हेल्थ, वो भी हेल्थ में आता है। व्हाट इज हेल्थ? टोटल वेल बीइंग, टोटल वेल बीइंग, फिजिकली, फिजिकली भी फिट होना चाहिए आप, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। टोटल वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेल्थ से एडवांटेजेस क्या हैं? हेल्थ इंक्रीजेस लॉन्जिविटी, हेल्थ इंक्रीजेस योर लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी। सब हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, एंड एवरीवन वांट्स टू लिव मोर देन 100 years। हेल्थ इंक्रीजेस लॉन्जिविटी ऑफ पीपल। reduces infant mortality, infant mortality rate and maternal mortality rate। सो अगर हेल्दी रहेंगे तो डेथ रेट भी कम होगा, अल्टीमेटली मॉर्टैलिटी मतलब डेथ रेट। ठीक है, सो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी नहीं बोल सकते इसको। व्हाट इज हेल्दी? हेल्दी मीन्स हु इज गुड फिजिकली, मेंटली और सोशली।
दिखने में उसको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी में, और मेंटली भी ठीक होना चाहिए, हिज थिंकिंग और सोशली हिज कम्युनिकेशन विथ अदर्स, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे रह रहा है, दैट इज सोशली। सो हेल्थ से एडवांटेज क्या है? हेल्थ से एडवांटेज है कि लॉन्जिविटी ज्यादा हो जाएगी, लाइफ स्पैन ज्यादा हो जाएगा, एंड रिड्यूसेस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अगर हेल्दी रहेंगे तो मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट, गुड हेल्थ मेक द पर्सन टू वर्क मोर एफिशिएंटली। गुड हेल्थ make the person to work more efficiently. अगर हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हेल्दी रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को देखेगा वो, राइट? ज्यादा से ज्यादा आप अगर हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकता हूं। सो गुड हेल्थ मेक द पर्सन टू वर्क मोर एफिशिएंटली बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे? हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ? गुड हेल्थ इज मेंटेन बाय, गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय, कैसे मेंटेन करेंगे? जनरल चीजें हैं, वी ऑल नो। गुड हेल्थ इज मेंटेन बाय, नंबर 1 क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैलेंस डाइट लेना चाहिए आप लोग। बैलेंस डाइट मतलब whatever food you are eating every day, that food should have carbohydrate, proteins, minerals, vitamins, हर चीज होना चाहिए उसमें। बैलेंस डाइट होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, करेक्ट, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, या आप योगा कर सकते हैं, दैट आल्सो मेंटेन गुड हेल्थ। वैक्सीनेशन, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है सो दैट न्यूबॉर्न बेबी शुड गेट ऑल द वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो आपके किचन से, आपके घर से जो भी वेस्ट आ रहा है, सो उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए डिस्पोजल का। सो इट शुड नॉट बी थ्रोन इन पब्लिक प्लेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए। सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स एंड अल्कोहल abuse affects our health. Drug and alcohol abuse affects health. ये भी पॉइंट नोट रहना है आपके पास। कोई भी नशे की चीज जैसे ड्रग्स हैं या अल्कोहल है ना, शराब का नशा है, ये सारे चीजें क्या हैं? हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, what is mean by disease? Malfunctioning of the organ or organ system, malfunctioning of the organ or organ system, organ system is called disease। अगर बॉडी के ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, जैसे किडनीज ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी, किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इफ लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन इट कॉजेस डिसीज। माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड डिजीज। अगर कोई भी ऑर्गन बॉडी का बराबर काम नहीं करेगा, सो दैट कॉजेस डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट, अब डिजीजेस कितने टाइप के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज?
ये जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है, वेरी सिंपल है. डिजीजेस आर हाउ मेनी टाइप. डिजीजेस को हम जो है दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. नंबर 1, डिजीजेस से नंबर 1 जो है इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. What is meant by infectious disease? The disease which spread from person to person. The disease which spread. Diseases which spreads from person to person. From person to person. They are called infectious diseases. Okay, and these non-infectious diseases mean these diseases are not spreading from person to person. The diseases which are not spreading, from person to person. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज नहीं हो रही है, सो देन इट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. अगर स्प्रेड हो रही है तो इन्फेक्शियस. द डिसीज विच स्प्रेड इन्फेक्शियस, एंड द डिसीज विच इज नॉट स्प्रेडिंग नॉन इन्फेक्शियस. समझ रहे हैं? सो वन ऑफ द डेडली इन्फेक्शियस डिसीज, एक डेडली इन्फेक्शियस डिसीज का नाम बता रहा हूं मैं, एड्स. डेडली इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिजीज है एड्स. कॉमन कोल्ड भी जो सर्दी जुकाम हो रही है, दैट इज आल्सो इन्फेक्शियस डिसीज, कॉमन कोल्ड, बट इट इज नॉट सो डेडली. लेकिन एड्स जो है बहुत डेडली डिजीज है. नॉन इन्फेक्शियस, डेडली नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जांपल दो बोले तो आप क्या बोलेंगे? डेडली नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. याद आ रहा है आपको कोई? यस, डेडली नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जांपल है कैंसर. कैंसर इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो है कैंसर क्या है? एक नॉन इन्फेक्शियस, एक डेडली डिजीज है. डेडली नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोल तो कैंसर होगा, डेडली इन्फेक्शियस डिसीज मींस एड्स होगी. सो आगे ये चैप्टर में एड्स के बारे में डिटेल में आएगा, कैंसर के बारे में भी डिटेल में आएगा चैप्टर में आगे. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. नाउ सम बेसिक डेफिनेशंस आएंगे. पहले कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. व्हाट इज पैथोजन? नंबर 1, पैथोजन क्या होता है? पैथोजन मीन्स व्हाट? सो हेडिंग बनेगी कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन. कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन. व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन? इसमें जो है सबसे पहले व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन किसको बोलेंगे? डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन. डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिससे डिजीज हो रही है, डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन. जिससे डिजीज हो रही है वो पैथोजन है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन. मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन्स. चेक कर लेना, आपके एनसीईआरटी में पहले लिखा था, ओल्ड एनसीईआरटी में था ऑल ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन. पैरासाइट्स मींस any organism which live outside the body or inside the body of host. Parasite means any
organism which is present outside the body or inside the body of host and taking food and shelter and causing harm to the host. अब पैरासाइट भी दो टाइप के हैं भाई, पैरासाइट भी दो टाइप के हैं. एक्टोपैरासाइट, वी ऑल नो एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट. Can we have one example? Ectoparasites, ticks, mites, lice in human head. Lice human head में, ticks, mites, dogs, cats में वगैरह होते हैं. Endoparasites का example Ascaris. Anyhow, most of the parasites are pathogen. Pathogen enters in human body by different ways. अलग अलग तरीकों से ये एंटर हो जाते हैं बॉडी में. कैसे एंटर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे टाइफॉइड की, फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड पैथोजन एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. टाइफॉइड पैथोजन enter through contaminated water and food. Through contaminated water and food. ये फूड और वाटर से अंदर जा रहे हैं पैथोजन बॉडी में. टाइफॉइड पैथोजन, हाउ इट एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी? इट एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. ठीक है, चलिए ओके. अभी पैथोजन क्या करता है? पैथोजन कॉजेस मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. पैथोजन कॉजेस मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. मॉर्फोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं, फंक्शनल डैमेज भी कर सकते हैं पैथोजन. वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज और फंक्शनल डैमेज. मॉर्फोलॉजिकल डैमेज में देखिए बेस्ट एग्जाम्पल है रिंगवर्म. रिंगवर्म कहीं पे भी बॉडी में हो सकती है. फंगस ग्रो होता है एंड इट कॉजेस इंटेंस ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही, तो दैट इज मॉर्फोलॉजिकल डैमेज. बाहर से दिख रहा है रिंगवर्म, इंटेंस ईचिंग है. फंक्शनल डैमेज मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी डैमेज हो रहा है, जैसे मलेरिया है. मलेरिया डिस्ट्रॉय लीवर एंड आरबीसी, पता है ना. फंक्शनल डैमेज. फंक्शनल डैमेज के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे मलेरिया फंक्शनल डैमेज है. मॉर्फोलॉजिकल डैमेज बोलते तो रिंगवर्म है, रिंगवर्म. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Pathogen also know how to escape from the host immune system. Those pathogens which enter our digestive system along with water or food, they know how to survive inside the stomach in acidic pH. पैथोजन को पता होता है स्टमक में एसिड है तो एसिड से कैसा बचना चाहिए. They know very well. Pathogen knows how to escape from host immune system. Point लिखिए. Pathogen knows how to escape from host immunity. Pathogen knows how to escape from host immunity. तभी तो डिजीज होती है ना. पैथोजन knows, पैथोजन को पता होता है how to escape from host immunity. For example, the pathogen which enters our gut, pathogens which enters our gut must know
हाउ टू survive in acidic pH, how to survive in acidic pH, एसिडिक पीएच पे कैसे रहना है उनको पता होता है, तभी तो वो वाटर से फूड से अंदर चले जाते हैं और स्टमक में जाके दे नो हाउ टू सर्वाइव इन एसिडिक पीएच. एंड फाइनली इफ पैथोजन विन्स, जब पैथोजन विन हो जाता है तब जाके डिजीज होगी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आवर इम्यून सिस्टम इज आल्सो विनर. फाइट होती है इम्यून सिस्टम एंड पैथोजन की फाइट होगी. एंड समटाइम पैथोजन विन्स, समटाइम इम्यून सिस्टम विन्स. सो व्हाट आर द बैक्टीरियल डिजीजेस? अब हम आएंगे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन. द फर्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज टाइफाइड. जो फर्स्ट डिजीज हम पढ़ने वाले हैं आज वो है टाइफाइड डिसीज. इन एवरी डिजीज वी विल कवर फर्स्ट क्या कवर करेंगे? टाइप ऑफ डिजीज. व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इट इज? टाइप ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, पैथोजन का नाम पढ़ेंगे, ओके, लोकेशन ऑफ पैथोजन, लोकेशन ऑफ पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी. पैथोजन कहां पर है बॉडी में, ठीक है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, हाउ इन्फेक्शन ऑकर, एंड व्हाट आर द सिम्टम्स. हर डिजीज में हम इतने सारे चीजें कवर करने वाले हैं. टाइफाइड इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? इट इज बैक्टीरियल डिसीज. टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है. इट इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. इट इज द बैक्टीरिया नेम Salmonella typhi is the bacteria which causes typhoid disease. Location of pathogen, it located in the small intestine. ये small intestine में रहेगा. समझ रहे हैं? टाइफॉइड डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है. इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी and that Salmonella typhi resides in small intestine. And mode of infection, the disease, how this disease typhoid spread, कैसे spread होती है ये? Through contaminated water and food. Through contaminated water and food. ये water और food के contamination से होगी ये disease. Contaminated water and food. What are the symptoms of this disease? सिम्टम्स क्या हैं ये डिसीज के? सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स आर द साइंस. साइंस, क्या क्या साइंस हैं बॉडी में, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बाय विच डॉक्टर आइडेंटिफाई द डिजीज. सो जैसे ही टाइफाइड होती है ना, होने के बाद जो है सस्टेन्ड हाई फीवर होता है. पेशेंट को ज्यादा दिन बुखार रहेगा. सस्टेन्ड हाई फीवर, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर बताते रहता है उसका. ओके, सस्टेन मतलब ज्यादा दिन रहेगा फीवर. ये वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी. स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा. हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक रहेगा. सर्द होगा पेशेंट को, सर दर्द होगा, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट. एंड द मेन सिम्टम इन सीवियर केसेस इट कॉजेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा. इंटेस्टाइनल परफोरेशन. So if
टाइफॉइड डिसीज इज नॉट ट्रीटेड, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा सीरियस केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर लीजन्स बनते हैं, वुंड्स बनते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, एंड मे लीड्स टू फैटल डेथ भी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड. सो टाइफॉइड डिसीज, number 1 point, it is caused by a bacteria. What is the name of bacteria? Salmonella typhi. Salmonella typhi. And where the pathogen residing in human body, it is located in a small intestine. And the typhoid disease is spread from one person to another person through contaminated water and food. If a person who is having typhoid disease, if that person's fecal matter, उसका जो फीकल मैटर है, स्टूल्स हैं, उसका जो वेस्ट है, डाइजेस्टिव वेस्ट, अगर कहीं ड्रिंकिंग वाटर में आ जाए, कोई वेजिटेबल के ऊपर आ जाए, फ्रूट्स के ऊपर आ जाए, देन द डिसीज स्प्रेड टू अदर्स. और टाइफॉइड में सबसे पहले क्या होगा? फीवर बहुत ज्यादा रहेगा, सस्टेन्ड हाई फीवर, 7 to 8 days कंटिन्यूस है ना, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर दिखाएगा, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. And then next, what is the diagnostic test here? Diagnostic test. और जैसे ही डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है जिसको सस्टेन्ड हाई फीवर, बहुत दिन से फीवर है, तो डॉक्टर इमीडिएटली उसको प्रिस्क्राइब करता है, एक टेस्ट लिख के देता है, विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट करते हैं इन केस ऑफ टाइफॉइड डिजीज. ठीक है. एक क्लासिकल केस भी पढ़ना है टाइफॉइड डिजीज में. क्लासिकल केस, टाइफॉइड का एक पुराना केस है, जैसे मैरी मेलन का केस है. मैरी मेलन, ए लेडी बाय प्रोफेशन, ए लेडी बाय प्रोफेशन, शी वॉज कुक. बाय प्रोफेशन शी वॉज कुक, and also carrier of typhoid disease, carrier of typhoid, spreaded typhoid to several humans, to several persons through her cooked food, थ्रू हर कुक्ड फूड. मतलब इसका जो भी फूड खाते थे, जो भी ये प्रिपेयर करती थी, बाय प्रोफेशन शी वाज कुक, एंड जो भी लोग उसका फूड खाते थे उसको टाइफाइड हो जाता था, डिजीज हो जाती थी. सो दैट्स व्हाई दिस लेडी लेटर ऑन निकनेम्ड, मैरी मेलन को निकनेम दिया गया बाद में, टाइफाइड मैरी बोल के. लेटर ऑन दिस लेडी nicknamed as, क्या नाम दिए? निकनेम टाइफॉइड मैरी बोल के नाम दिया इसको, निकनेम्ड एज टाइफॉइड मैरी. मैरी मेलन का केस हमेशा याद रखा जाएगा बिकॉज शी स्प्रेडेड द डिसीज टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों को ये टाइफॉइड डिसीज स्प्रेड करी थ्रू हर कुक्ड फूड. सो दिस इज व्हाट टाइफॉइड डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है. सारे पॉइंट्स नोट करिए ये. सो आफ्टर टाइफॉइड द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वी विल सी निमोनिया. निमोनिया देखेंगे अभी. सिस्टमैटिकली अगर आप लिख लेंगे सारे चीज, वेरी इंपॉर्टेंट हियर सिम्टम्स. एग्जाम में ज्यादातर सिम्टम्स पूछे जाते हैं, एंड सीवियर केस में जो सिम्टम होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हेडेक तो बहुत सारे डिजीज में होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत सारे डिजीज में होता है, स्टमक पेन बहुत सारे डिजीज में होता है. इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज ऑकरिंग ओनली इन टाइफॉइड. चलिए नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे निमोनिया. आफ्टर टाइफॉइड नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे
pneumonia disease. In pneumonia disease, first thing, it is what type of disease? It is bacterial disease. ये bacterial disease है. What is the pathogen here? Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia. Okay, and Haemophilus influenza. And Haemophilus influenza. And Haemophilus influenza. So these are the two bacteria which causes pneumonia disease. Haemophilus influenza. Next, location of the pathogen, where this pathogen reside. If this pathogen enter into the human body, where it reside? It resides in alveoli of the lungs. Alveoli of lungs. Mode of infection, how this disease spread? जो person diseased है, infected है, from that person how the disease spread to other healthy persons. Mode of infection is a droplet method बोलते हैं इसको, droplet और aerosol method. Aerosols. Suspended air particles, air में जो particles हैं, जैसे कोई पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, स्नीजिंग करता है, कॉफिंग करता है, so several thousands of droplets, minute droplets are released into the air. So that droplets carry the pathogen from one person to another person. Droplet or aerosol through sneezing or coughing. Through sneezing or coughing. Then what are the symptoms of this disease? Pneumonia में क्या होता है? Pneumonia में क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए, difficulty in breathing. Difficulty in breathing because alveoli gets filled with the fluid. Breathing में मुश्किल होगी because alveoli gets filled with fluid. Lungs के structural and functional unit. What are the structural and functional unit of lungs? Alveoli. Those alveoli gets filled with the fluid. Fever रहेगा, chill होगी, fever, chill, सर्दी लगेगी, cough, headache, cough रहेगा, headache रहेगा, and very very important symptom in case of pneumonia disease, lips and nails. Lips और nails जो है कलर चेंज करते हैं. लिप्स टू नेल्स, लिप्स एंड नेल्स आर चेंजिंग कलर फ्रॉम ग्रे टू ब्लूइश कलर. लिप्स एंड नेल्स ग्रे टू ब्लूइश कलर. सो लिप्स भी ब्लू कलर के दिखने लगते हैं निमोनिया डिजीज में. ओके, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ pneumonia, and in case of pneumonia, very very important symptom is this one, lips and nails gray to bluish color दिख रहे हैं. This is the main symptom. So aerosol क्या होते हैं? Aerosol are the suspended air particles which are released through sneezing or coughing. एयर में जो भी पार्टिकल होते हैं उनको हम aerosol बोल सकते हैं. Okay, and pneumonia is a disease of lower respiratory system. Pneumonia is a disease of, it's a disease of lower respiratory system. ये lower respiratory system को अटैक करता है, not upper. Alveoli कहाँ हो गए? Alveoli are lower part of the respiratory system. Upper part of the respiratory system include nose, respiratory passage like trachea, bronchi. But here in pneumonia, nose is not affected. यहाँ पर क्या affect हो रहा है? Lower respiratory system, alveoli,
deep inside the lungs. Apart from these two common bacterial diseases में typhoid हम एक पढ़े, pneumonia एक पढ़े. Apart from these two bacterial diseases, there are many other bacterial diseases also. Bacteria also causes other bacterial disease बोल के लिखिए note. Other bacterial diseases. तो नंबर 1 यहां पर देखिए डिसेंट्री है, लूज मोशन. डिसेंट्री में इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया शीजेला. शीजेला बैक्टीरिया बोलते हैं. इट इज कॉज बाय शीजेला बैक्टीरिया. डिसेंट्री. प्लेग. प्लेग इज आल्सो बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय यर्सीनिया पेस्टिस. Yersinia pestis bacteria. And how this disease spread through rat fleas. जो रैट के बॉडी पे फ्लीज होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, फ्लीज, rat fleas. Minute insects are present on the body of rats. From there it can enter into the food or water or some other places. Plague. Dysentery हो गया. Typhoid. Next another bacterial disease is diphtheria. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae infects pharynx part. Infects pharynx. So यहां से जो पैसेज है ना एयर वाटर के लिए, बिलो द माउथ एयर वाटर फूड इज पासिंग थ्रू द pharynx, that gets affected in diphtheria. Tuberculosis बोल के एक डिजीज है, tuberculosis, TB. In short, we call it as TB. It is caused by Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. And the main symptom of this TB is cough with blood. है ना, blood आ रहा है cough में, तो ये जो है ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम है. Now after bacterial diseases, now we will go to common cold. One more common cold disease. ये तो हर एक पर्सन को एक ना एक बार लाइफ में होता ही है, कंपलसरी. ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको कॉमन कोल्ड ना हुआ हो. एवरीवन गेट्स कॉमन कोल्ड. तो कॉमन कोल्ड ये कौन से टाइप के डिजीज है? इट्स ए वायरल डिसीज. इट्स ए वायरल डिसीज. पैथोजन यहां पर क्या है? राइनोवायरस. कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस. इट्स ए वायरल डिजीज. लोकेशन ऑफ द पैथोजन, वेयर दिस पैथोजन रिसाइड्स, नोज रेस्पिरेटरी पैसेज. इट इज लोकेटेड इन नोज respiratory passage, but not lungs. Lungs are not affected. Lungs are affected in case of pneumonia disease. Pneumonia में हो रहा है lungs, but in case of common cold, nose gets infected, respiratory passage, but not lungs. Mode of infection, it is also droplet or aerosol method. Through sneezing, coughing. जो भी पर्सन स्नीजिंग कर रहा है, कॉफिंग कर रहा है, यहां पर लिखेंगे हम contaminated objects of common cold person. Contaminated objects like keyboard,
पेन, पेंसिल, बुक्स, ग्लास, डोर नॉब्स, डोर नॉब्स ऑफ common cold patient, common cold patient can spread the disease. ओके जिसको भी कॉमन कोल्ड हो गई है, सर्दी हो गई है, उसके जो भी कंप्यूटर है या नहीं तो उसका पेन पेंसिल अगर कुछ भी यूज करेंगे आप, उसके कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, देन डिसीज विल स्प्रेड टू अदर्स आल्सो. सो डिस्टेंस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड. डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे जरा दूर रहना चाहिए. सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम नाजल कंजेशन, सोर थ्रॉट. नाजल कंजेशन हो जाती है. क्या क्या हुआ था एक्सपीरियंस, आपको भी याद होगा ना, जब आपको कॉमन कोल्ड हुआ होगा तो सबसे पहले नाक बंद हो गई होगी, है ना, नाजल कंजेशन बोलते हैं इसको. सोर थ्रोट मतलब थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी रहेगा. साउंड चेंज हो जाएगी आपकी, वॉइस होआर्सनेस बोलेंगे उसको, होआर्सनेस, चेंज ऑफ वॉइस, होआर्सनेस. कॉफ, हेडेक, कॉफ रहेगा, हेडेक रहेगा. टायर्ड रहेंगे ज्यादा, टायर्डनेस. And this person will be recovered in 3 to 7 days. Automatically recovered. जो common cold person है, recover in 3 to 7 days naturally. कोई एंटीबायोटिक अभी तक मार्केट में नहीं है कॉमन कोल्ड के लिए. कॉमन कोल्ड के लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, बट द पर्सन हु गेट्स द कॉमन कोल्ड 3 to 7 डेज में रिकवर हो जाता है नेचुरली, ठीक हो जाता है वो. सो बेसिकली ये चैप्टर में हम क्या पढ़ते जाएंगे? बैक्टीरियल डिजीजेस. वी कंप्लीटेड बैक्टीरियल डिजीजेस लाइक टाइफाइड एंड निमोनिया, 2 डिजीज दिए थे आपके सिलेबस में. उसके बाद वायरल डिसीज हम स्टार्ट किए हैं, कॉमन कोल्ड. अभी आगे आएंगे प्रोटोजोआन डिसीज, वर्म डिजीज, फंगल डिजीज, ये आगे क्लास में हम पढ़ेंगे. सो मेन थिंग दैट वी डिस्कस टुडे इज व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या है? हेल्थ इज नॉट ओनली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज. हेल्थ मीन्स total well-being, physically, mentally, socially. How you are interacting with your friends, how you are interacting with your relatives, parents, brothers, that all indicates your health. According to WHO, World Health Organization decide करता है definition of health. और ये बता रहा है कि total well-being, physically, mentally and socially is called health. Healthy रहने के कई advantages हैं. हेल्दी रहेंगे तो आपकी लॉन्जिविटी, लाइफ स्पैन इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी. हेल्थ इंक्रीजेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज्यादा काम करेंगे तो आपकी इकोनॉमी ठीक होगी. हेल्दी रहेंगे तो आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. Okay, there are several advantages. And for maintaining health, what is most important? Personal hygiene, after that public hygiene. Personal hygiene मतलब पहले अपने आप को ठीक रखिए, क्लीन रखिए अपने आप को, है ना. वॉशिंग हैंड्स, टेकिंग बाथ, कटिंग नेल्स प्रॉपरली. सो ये सब क्या है? पर्सनल हाइजीन है. पब्लिक हाइजीन मतलब आपके नेबर्स को जाके क्लीन नहीं करना है. पब्लिक हाइजीन मतलब क्या करना है? आप अपना जो भी किचन वेस्ट है, आपका जो भी हाउस वेस्ट है, आप कहाँ पे फेंक रहे हैं, इट शुड बी थ्रोन प्रॉपरली आउटसाइड द सिटी, है ना, सैनिटरी लैंडफिल्स में. सो वी विल कंटिन्यू दिस कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, वी विल कंटिन्यू विद द प्रोटोजोआन डिसीज. प्रोटोजोआ डिजीज कौन से? मलेरिया, अमीबियासिस, दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.